Hello friends, welcome once again. In the GTO series, it is conducted over 2 days. There are 9 tasks. On the day 1 you have GD, GP, PGT, GOR, HGT and lecture 8. And on the second day you have individual obstacle, command task and final group task. Total 9 tasks. And this is what the GTO sees. Your role play in the group of 10, the consistency with which what you are performing and how effective are you in the group effectiveness. And if you remember, I've shown in one of the previous videos on GTO, basics of group testing करके नाम था. There I've told you that the group testing attempts to evaluate each individual in the context of a group. What does it mean? That you perform in a group, unlike in the psychological test where you are performing in isolation. So psychological tests test your static pattern of personality, whereas this test your dynamic pattern of personality. So you have to function in context of a group, whereas the testing is of individual, whether it's psychological test, GT or interview. So group testing officer attempts to evaluate each individuals in the context of a group. He attempts to determine each individual candidate's ability to function in a group. So you have to improve this, your ability to function in a group, and based on your functional capacity to ascertain your present level, that is the actual level of performance, and potential or predictive level. The gap between this has to be reduced because he is to apply the trainability parameter and then decide to recommend you or not to recommend you, and to assess your suitability for the armed forces. This already I have conveyed in the previous video on basics of group testing. बहुत detail में दिया हुआ, I'll request to watch that. Now in this specific video, we will talk about the 4 outdoor tasks, Fattaballi tasks. Now these are the only 4 tasks which are Fattaballi tasks. The point is not Fattaballi. Fattaballi is a tool to understand your practical application skills in an actual situation. So PGT, HGT, command task and FGT. Now all these 4 tasks, essentially they involve a start line, a finish line, some structures in between, and then you have to cross. Only in the command task, the difference is that the commander is responsible for creation of idea and the other subordinate helps him to execute the idea. So there are 2 levels at which you're working. One is the creation of idea that has to happen within you, and then the execution of idea that either you can do it in case you have access to the helping materials and access to the structure, or you communicate it to people who have the helping material and they execute for you. So there are 2 levels: idea creation and execution of idea. So all those things I've already spoken. Now whether it is PGT, HGT, command task or FGT, you have a start line, you have a finish line, in between you have certain obstacles. Now in the PGT briefing, if you remember, I have shared it in the courses.ganeshbabu.in, all the 9 task briefing and the pre-briefing and the debriefing. I'll request you to go and watch that if you're not already done that. Now in the PGT briefing, there is a portion of that I'm taking here. It says you will be tackling a series of 4 obstacles. In the PGT, you will be tackling a series of 4 obstacles, starting with a simple one. So PGT 1 will be very simple, and as you go ahead, you will find that these obstacles are not so simple. Therein lies the progressivity in the task. What does it mean? कि जैसे जैसे PGT 1 से 2, 2 से 3 में बढ़ते जाओगे, टास्क का लेवल सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हर एक टास्क में यू विल हैव स्ट्रक्चर्स, बट दीज स्ट्रक्चर्स विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. एंड यू ऑल्सो नो दैट इन दिस टास्क यू हैव टू अप्लाई 5 rules: the group rule, the distance rule, the color rule, the rule of rigidity and the rule of infinity. These things are already explained in the briefing video, so I'll request you to watch that. Now what you have to understand is, in the briefing it says starting with simple, and as you move they will not be so simple. That means they become difficult. So that means as you move from PGT 1 onwards, you will find that initially direct bridging is happening. Thereafter you require indirect bridging, that is simple indirect bridging, and then complex indirect bridging. The degree of difficulty keep increasing. That means as the PGT progresses, initially in direct bridging, even people with lesser IQ, lesser capability to apply can do it. But as the task moves from 2 to 3, it becomes complex, and only those people who have a sharp practical problem skills and ability to analyze the structure, they will survive. Others जो है they will start fizzling out. तो इसको समझने के लिए
What is direct bridging? अगर suppose इस बंदे को structure A से B पे आना है and you have a helping metal that you are able to cover the distance directly, this is called direct bridging, where he can simply walk across this, and if he's at the distance of 4 feet you can simply jump and finish it. Now this kind of a bridging is direct bridging, and यहाँ पे definitely the requirement of intelligence is very low. जिसके पास भी फट्टा वो लगा देगा. That's why फट्टा is equal to brigadier. बोला भी जाता है टास्क शुरू होते फट्टा उठा लो, क्योंकि PGT1 में anyway आप bridging तो कर ही लोगे. Now that's direct bridging. What is indirect bridging? Simple indirect bridging. Here the point B where you have to place the plank, it is not reaching. इसका मतलब the length of the plank is shorter than the distance to be covered, but still you have to make a bridge. That's where the indirect bridge. So here the front of the bridge is open, so you have to do something at the rear, and that's simple indirect bridging. And then you have to walk, and it should not go and touch the ground, because if it touches the ground the rule will break, and then you can get over it. So how do you make this indirect bridging? इसको करने के लिए आपको इंटेलिजेंस का जरूरत पड़ेगा. एंड व्हाट हैपेंस इन कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट ब्रिजिंग, अगेन यू हैव टू मेक indirect bridging, but the solutions will not be very easily coming, because it requires certain degree of structure analysis and the ability to use the resources that are given to you in terms of those whatever fattabali and all that. It's not physical doing, it's ability to create the idea. Physically तो anybody can do it, provided somebody can tell कि उसको करना क्या है. So two levels, idea creation and idea execution. Now just to put it more clear, what I will do is I'll take a sample structure. Now this is, don't worry about whether it's PGT, HGT, commandos or whatever. Let's take this structure, and for you to understand, I'll take an equivalent structure of this model. उसके ऊपर बताऊंगा करना क्या है आपको. इस स्ट्रक्चर को यूज करना है. You have to make a bridge and you have to get down this platform. 4 फीट के डिस्टेंस पे आप एनीवे जंप कर सकते हो. इसको समझने के लिए मैं आपको ये एक स्ट्रक्चर यूज करूंगा. इट्स इक्विवेलेंट टू द स्ट्रक्चर विच इज ऑन द ग्राउंड, एंड आई विल गिव एन एक्सप्लेनेशन. प्लीज लिसन टू द एक्सप्लेनेशन and then we'll see whether you are able to do it or not. So let's listen to the structure ka briefing. I'll do it on the model. So structure briefing ko dhyan se sunna. I will first explain the structure. The same explanation will be given to you by the GTO. Now if you see this structure, there are 4 independent units. Let's name them. Let's call it rotating arm. You can see there is a rotating arm. Let's call it rotating arm 1. This rotates and there is a stopper here. The stopper stops the rotation. The stopper stops the rotation both ways. So rotating arm 1, and on this there is a ring 1. What is the purpose of ring 1? We'll see baad mein. And then this is stopper 1. Rotating arm 1, stopper 1. Behind you have rotating arm 2 and stopper 2. Stopper 2 also rotates, and rotating arm 2 also rotates, and the stopper stops the rotation both ways, clockwise also and anti-clockwise. Now what is to be done is, you have one helping metal, that's a plank, and you have to make a bridge in this direction. So this is the place where the load will come. So load over central support, under rear support. So please explain how will this work. So this was the briefing for the structure, and now you have to make a bridge in the direction that was pointed out. Now what I'll do is, I'll request you to put your comments, pause the video and put your comments in terms of what is the solution that you have to do in terms of the rotating arm 1 and stopper 1, and rotating arm 2 and stopper 2, and the usage of plank. Now I'll show you one video. Now this video is by a boy who is a engineering graduate and going for FCAT, I think 3rd time, and we will see his action, and we will see his ability to function in a group. Now here he is not going to function in a group, he is going to function as an individual. But the question is, if he is able to function as an individual, only then he can function in a group. अगर आपको सोलो डांस ही नहीं आता तो ग्रुप डांस कैसे करोगे? अगर आपको सिंगल स्विमिंग नहीं आता तो ग्रुप स्विमिंग कैसे करोगे? So we'll see that. And group testing attempts to evaluate each individual in the context of the group. So here we have removed the group and we are making him do work.
he attempts to determine each individual's candidate's ability to function in a group. So if he can function as an individual, there is a possibility of his functioning as a group, provided he has got certain other interpersonal skills. But अगर intellectually यहाँ पे individually support नहीं करेगा तो group में तो कर ही नहीं पाएगा. And based on his functional capacity to ascertain his present level and potential level and to assess his suitability for the armed forces. तो हम क्या करेंगे, इस बंदे के एक्शन को देखेंगे और इस बंदे को एक्शन को देखकर इसके थॉट्स को सोचेंगे. क्लैरिटी इन थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस, और डज ही हैव क्लैरिटी इन हिज थॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इज कमिंग. सेम जैसे टीएटी में पहले आपकी सोच में स्टोरी बनती है, फिर पेन से लिखते हो. यहाँ पे आपके सोच में पहले आइडिया आएगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा, ऑप्शंस क्रिएशन होगा, एंड देन एक्शन में आएगा. एंड इन द प्रोसेस वी विल सी कि क्या इसका इंटेलिजेंस ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा. एंड वी विल सी कि वेयर डज ही फाइंड, मतलब इज ही कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड और इज ही कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड. एंड देन वी विल सी द वेरियस क्वालिटीज under the factor 1 and some in factor 3. कौन कौन सा? रीजनिंग एबिलिटी, the ability of the candidate to grasp the essential value to arrive at conclusion by rational thinking, receptivity, inquiring attitude, logical reasoning, ये सब हमको पता है. effective intelligence, practical problem solving, he has been given this task, he has to solve. अभी जैसे रखा, all he has to do is place the bottle on top, है ना, ब्रिज तो बनाए रखा हुआ है. इट इज़ द इंटेलिजेंस यूटिलाइज इन कोपिंग विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी. इफेक्टिव इंटेलिजेंस इंक्लूड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस. तो हम देखेंगे. नेक्स्ट इज हिज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज हिज रिसोर्सेज. एंड आई टोल्ड यू एसएमएल का एक स्टेटमेंट, इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू ओनली देन यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. तो अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी में इज दिस बॉय एबल टू मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड हिम, बिकॉज इफ ही कैन डू दैट ही कैन डेफिनेटली मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड. सो अभी ये ब्रिज देखने में फंक्शनल है, आप देखना इसमें कोई इशू है या नहीं है. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ डिसीजन. फैक्टर 3 का क्वालिटी है द एबिलिटी टू अराइव एट वर्कबल डिसीजन एक्सपीरियसली. तो इस लड़के ने स्पीड से वर्कबल डिसीजन में आना है. एंड इट कंप्राइजेज ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिसीजन अराइव्ड आउट. तो अप्रोप्रिएटनेस हमें कैसे दिखाई देगा? इस बंदे के एक्शन से दिखाई देगा, और उस एक्शन के थॉट्स को एज ए जीटीओ मैं समझने की कोशिश करूंगा. इनफैक्ट आपको भी अभी समझ में आ जाएगा. एंड द क्विकनेस इन अराइविंग, और देखेंगे कितना फास्ट ये लड़का सॉल्यूशंस के ऊपर आ पाता है. इसके अलावा हम देखेंगे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेफिनेशन है, it is the faith in one's ability to meet stressful situation, particularly those that are unfamiliar. पहली बात तो ये जो लड़का है, ये क्योंकि 3 बार 4 बार SSB गया है, सो अनफेमिलियर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसने 3 बार SSB का ट्रेनिंग लिया हुआ और यूट्यूब वीडियो खूब देखा हुआ है इसने बड़े बड़े ग्राउंड्स में. तो क्योंकि ये ऑलरेडी SSB गया तो स्ट्रेसफुल भी नहीं है, ना ये अनफेमिलियर, बिकॉज SSB में 3 बार गया, तो PGT, HGT, कमांड टास्क, FGT 3 बार करके रखा हुआ, तो अनफेमिलियर. अनफॉर्चुनेटली इसके लिए आत्मविश्वास हाई होना स्वाभाविक है, बिकॉज ना ये अनफेमिलियर ना स्ट्रेसफुल है, बिकॉज ऑलरेडी 3 बार गया हुआ है. तो लेट्स वॉच, और इसको जो भी आपको दिखेगा आप मुझे बताना, क्या ये इसको देख के थोड़ी देर के लिए आप देखो, आप GTO नहीं हो, बट इसके एक्शन को देख के आपको क्या लगता है, ये एक्शन एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है. सो विल जस्ट वॉच इट एंड ऑब्जर्व इट. मैं ज़्यादा कुछ बीच में बोलूँगा नहीं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसके एक्शन पे देखिए. अब बता ये हाउ विल इट वर्क एंड व्हाई विल इट वर्क. क्या हुआ, क्या हुआ? सपोर्ट ने वेट ज्यादा है ना बॉटल का, तो हाँ, गिरेगा ही. तो कर, ठीक कर. प्लीज सर. पहले वाले हो गया. रीजनिंग एबिलिटी और इफेक्टिव इंटेलिजेंस का डेफिनेशन को पढ़ो और देखो क्या कर रहा है. Now all you have to understand is what is happening inside. This I'm not seeing what is doing. Through that I'm trying to understand what's happening inside. What is the entry, what is the age, and what is the expectation. मुझे बताना क्या गलती कर रहा है, लिख के बताना.
कमेंट बॉक्स में। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का डेफिनेशन देखना क्या है किसी के पास है वो शीट? देखो क्या है, और रीजनिंग एबिलिटी का क्या है देखो, और अभी देखो आपके सामने क्या हो रहा है। एयरफोर्स दिख रहा है तेरा सर्विस एंट्री तो PGT3 में ये होगा, और वहाँ पे आपको क्या करना है वो बताएंगे भी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए लोगों का बिहेवियर को देखो। तुम पहली बार आए नहीं, आज फर्स्ट डे तो नहीं है, आज किसी का फर्स्ट डे तो यहाँ नहीं बैठना, मिस आउट। ना इस टास्क का लेवल जो आपको वो टास्क दिया था उससे कंपेयर करो, कुछ भी नहीं है ये। सो देयर इज नो पॉइंट गिविंग हिम दैट टास्क। इसका मतलब कमांड टास्क में आपको उस टास्क पे लेके ही नहीं जाएंगे। क्यों नहीं लेके जाएंगे? बिकॉज दिस इज टू बिलो दैट। और ये हमें कैसे पता चलेगा? PGT में पता चल जाएगा, HGT में पता चल जाएगा। अब ये PGT में कट जाएगा बंदा, फर्स्ट 3 टास्क में फंस गया, और ऊपर से अगर करंट अफेयर्स और GK के वो सब नहीं है तो GD में फंस जाएगा। सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। कौन सा एंट्री आपका? ओके चलो, अब ये कपूरथला चला जाए, अगरतला चला जाए, भटिंडा चला जाए, देहरादून चला जाए, परफॉर्मेंस यही रहेगा। सो डोंट से इलाहाबाद इज अ रिजेक्शन सेंटर। इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर। यू हैव टू बी वर्दी ऑफ देयर रिकमेंडेशन। Can you see the same action is getting repeated? So where is application of your intelligence? अभी अगर ये इंजीनियरिंग एंट्री हो, if it's an engineering entry, you're gone यार, because engineer is supposed to be logical. कोई बात नहीं, ये इंडियन इंजीनियर है, 3 इडियट वाला। लड़की तू भी इंजीनियर है क्या? तू बच गई तू। सर्विस एंट्री, अगर आप लोग सर्विस एंट्री में, खासकर आर्मी वाले, हम लोग एक्सरसाइज में जाते हैं, उल्टा पुल्टा ये सब होता ही रहता है। नहीं समझ में गया? नेवी में भी कुछ ना कुछ साला जहाज के अंदर होता ही रहेगा क्राइसिस में, एयरफोर्स में भी कुछ ना कुछ, मतलब एक होता है ना, मतलब एक फंक्शनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलो इसकी ट्रेनिंग कराते हैं भाई, मैं जो बोलूँगा वो बोलना 2 मिनट के लिए। कम ऑन जेंटलमैन, लेट्स डू समथिंग, लेट्स कोऑपरेट, टाइम इज रनिंग आउट, वी कैन डू इट, लेट्स मेक डबल कैंटिलीवर। वो छोड़ ना, तू बोल, अरे बोल ना। हो गया तुम्हारी ट्रेनिंग, तुम ये सब बोलते हो। तुमने ये बोला और तुम्हारा परफॉर्मेंस ये है, तुम साले गड्ढा खोद के अंदर कूद रहे। क्या हो गया भाई? ये लड़कियों ने कर दिया, ये देख, वो 20 साल की लड़की, 19 साल की लड़की ने कर दिया। बोला सर वो तो सही है, मुझसे नहीं हो रहा। क्या हो गया? हो क्या रहा है? अच्छा तेरा स्ट्रीम कौन सा? मैकेनिकल तो नहीं है, सिविल होगा? IT है। अच्छा IT है, चल करना यार, IT है तो क्या होगा। हो क्या रहा है ये बता, हो क्या रहा है? इसको किसी तरह से वो छोड़ो, अभी क्या हो रहा है? Why was it working on that छोटा वाला? और उसमें वो जो पीछे था, इंटरलॉक हो गया था। तो इसको इंटरलॉक क्यों नहीं हो रहा? तो इन लोगों ने कैसे किया? सोच नहीं रहा भाई, हवाई जहाज सोच रहा है? नो, देयर इज नो एक्टिव थिंकिंग। ओह, यू आर डूइंग रैंडमाइजेशन। चलो सम डू समथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल अप्रोच। मतलब इतना सारा हो गया। अच्छा, कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। दिस इज कॉन्फिडेंस विदाउट सब्सटेंस। गाजर नहीं है, झाड़ पे विश्वास आ रहा है। कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा।
अच्छा चलो एक काम करते हैं ऐसे ही, लड़की तू बोल नंबर 7 आई हैव एन आइडिया, प्लीज गिव मी द फट्टा बोलना। हाँ नहीं 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 तुम ये बोलना, नो टेल मी व्हाट टू डू बोल। टेल मी व्हाट टू डू, तू बीन बजा हम नाचेंगे। फट्टा इज इक्वल टू, लो फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर। तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे कीड़े डाले हुए, फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ होल्डिंग अ ब्रिगेडियर इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज इट? एंड देन व्हेन समबडी हैज एन आइडिया यू डोंट गिव इट, बट वैसे क्या बोलोगे, लेट्स कॉपरेट। हेलो लुक ए पट्टे, आई लुक लाइक चार्ली बट आई एम नॉट। I agree that I look like Charlie. बंधु क्या कर रहा तू? एक ही चीज बार बार करने से सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा क्या? यू आर नॉट चेंजिंग द इनपुट, हाउ विल द आउटपुट चेंज? तो एक काम कर, तेरा यहाँ 7.5 मिनट हो गया है अभी तो साला। So you saw he had the resources, he had no obstructions for others, and he kept on repeating something, rotating arm 1-2 के साथ कुछ करता रहा, but he could not put the load in the front. And now if you have seen, I'm sure you're not a GTO, but you can make out basics of group testing. Group testing also attempts to evaluate each individual in context of a group. So इसको group में क्या करना है, ये तो individually नहीं कर पा रहा. So he will anyway not be able to perform in the command task, and he will not be taken to a command task which is appropriate to a candidate जहाँ पे वो recommendation के possibilities है. And you look at his reasoning, look at his effective intelligence, his ability to organize his resources both inside and outside, and the way he was, doing this decision making and confidence superficial level पे. Now this is going to be disastrous. So ये नहीं चलेगा. So I'm sure आपको पता चलेगा. We were looking for a sharper brain, but इसकी कुल्हाड़ी पे धार ही नहीं है. एंड क्योंकि धार नहीं है वो बैठा है घुमा रहा है. और अगर ये ग्रुप में होता तो कोई ना कोई कर लेता, और इसको लगता मैंने भी कर लिया. सो याद रखना, द ट्रेनिंग हैज़ टू बी सच दैट यू हैव टू डेवलप इट इंडिपेंडेंटली. तो मुझे कमेंट में बताना कि ये लड़का क्या गलती कर रहा था. आई केप्ट क्वाइट ऑब्जर्विंग हिम. आई एम श्योर यू वुड हैव ऑल्सो ऑब्जर्व. GTO भी वहाँ पे काला चश्मा पहन के बैठा रहता, ऑब्जर्विंग ईच इंडिविजुअल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रुप. तो ये जो नीचे लिखा है क्या समझ में बताना. सो आपको ध्यान रखना है कि आपका परफॉर्मेंस, इफ़ यू वांट दैट यू शुड गेट रिकमेंडेड, यू हैव टू परफॉर्म. यू कैन नॉट डू व्हाट दिस बॉय इज डूइंग एंड देन स्टिल फील कि यू आर डन एक्सट्रीमली वेल. योर ग्रुप may be good, but what I am looking is what have you contributed in the group. Your contribution is important, and this boy's ability to contribute at the intellectual level is zero. और ये अगर फट्टा उठा के भागता रहेगा और दूसरों को फट्टा नहीं देगा और बीच बीच में आई एग्री विथ यू बोलेगा, इट्स नॉट व्हाट यू व्हेन यू से आई एग्री विथ यू, उससे मैं इम्प्रेस नहीं होता. मैं ये देखता हूँ कि तुम किस चीज़ से एग्री कर रहे हो. आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस all your actions at an intellectual plane. I want to understand the why behind your action, the why behind what you do. What you do, I observe, and I want to find out why are you doing what are you doing. So you can see whatever is boy का जो action है. तो definitely recently I put the video car का washing versus car का servicing. So if this boy comes to a coaching center, he can be put through 2 PGT, 2 HGT, 2 command tasks. वो उसको solution बाहर से फीड हो जाएगा, बट स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं सीख पाएगा. तो सिमिलर स्ट्रक्चर मिला तो कर देगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वो फिर प्रेशर में आ जाएगा. सो यू हैव टू सर्विस योर कार. सो डेफिनेटली इस लड़के का जो इंटेलिजेंस वाला पहिया आ रहा है, इसमें रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, हिज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इज ऑल कमिंग लो. इसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इज एनी वे फंक्शनिंग एज ए, हिज एबिलिटी टू इनिशिएट and sustain it. He cannot sustain it. He may jump into this task, but he cannot sustain because idea generate नहीं हो रहा. Because of low factor 1, his initiation cannot get sustained. Initiative के definition में उसमें and to sustain it. He cannot sustain it because बुद्धि साथ नहीं दे रहा. आत्मविश्वास इस लड़के का बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास तो है, बट इट इज सुपरफिशियल. सुपरफिशियल मतलब इट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस विदाउट सब्सटेंस. कॉन्फिडेंस विदाउट सब्सटेंस. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ डिसीजन. आपने देख लिया कि हाथ पर बहुत कुछ कर रहा है, बट इसके अंदर अप्रोप्रिएटनेस टू द डिसीजन इज नॉट देयर. कुछ भी कर रहा है, सो स्पीड से कर रहा है लेकिन दिशा नहीं है. यू वुड हैव सीन द सेम थिंग इन योर TAT.
only thing is in TAT here you are the hero. In TAT your hero is the hero, but you are the one who is thinking for your hero. तो वहाँ पे भी hero गलती करेगा, नुकसान आपका होगा. Ability to influence the group. If this is the way he is going to function, I don't think I'm going to get influenced by him. He is only making noise, no substance, shallow thinking, खोखला है. Liveliness under pressure, he will buckle down because he cannot effectively think. So because low factor 1 होने के कारण, फैक्टर 1 लो होने के कारण बुद्धि साथ नहीं दे रहा, तो इट इज अफेक्टिंग फैक्टर 3. सिमिलरली डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना. डिटर्मिनेशन सुपरफिशियल लेवल पे है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, तो इस लड़के को इतना दिमाग काम नहीं कर रहा फिर भी कॉन्फिडेंटली हंस रहा, मजाक कर रहा है. दैट्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर. सो सोशल इश्यूज में भी प्रेशर में गड़बड़ आ जाएगा. सो ओवरऑल कुल मिला के कार की सर्विसिंग की ज़रूरत है, वॉशिंग से नहीं चलेगा. सो आई एम श्योर इस वीडियो से ये समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल लेवल में इफ़ यू आर नॉट एबल टू एनालाइज स्ट्रक्चर्स एंड इफ़ यू जस्ट मेमोराइज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू राइट, हाउ टू टाई रोप या फट्टा कैसे लगाना है और लोड दूसरों से उठवाना, ये सब करने से सुपरफिशियल लेवल में फंस जाओगे. एंड आपको, ये लड़का हो या आप हो, अगर आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं आ रहा है, you need servicing because there is a certain degree of observation and analysis that is required for you to effectively function in these 4 tasks, outdoor tasks. And when you join AFOSOP, in the name of structure analysis, I will put you through not one command task. Unlike in the many coaching centers who claim they are number one, they have got a lot of ground. यहाँ पे simple indirect bridging के concept के ऊपर build करेंगे और उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट ब्रिजिंग, जो कि रिकमेंडेशन होने के लिए इस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा. इस लेवल पे करने से आप रिकमेंड नहीं होंगे. डायरेक्ट ब्रिजिंग के ऊपर कोई बताने की जरूरत नहीं. फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड है, जिसको मिला वो लग देगा. डायरेक्ट ब्रिजिंग का प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल इनडायरेक्ट ब्रिजिंग करने से भी आप रिकमेंड नहीं होंगे, बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट ब्रिजिंग नहीं कर पाओगे. एंड इफ यू कम टू AFOSOP, आई विल पुट यू थ्रू 30+ individual command task, not one command task, 30, and not simple indirect bridging. आपने कोचिंग में जाके देखना कि आप वीडियोस को मेरे से ट्रेनिंग करने के बाद आप दूसरे कोचिंग के वीडियो में जाना, वहाँ पे आपको एक टास्क मिलेगा कमांड टास्क करने को, वो भी आपकी क्षमता वाला. नेचुरली दैट्स वे SSB में होता है, यहाँ पे भी हो जाता है, बट उससे फ़ायदा नहीं है. आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, आपको अपनी क्षमता बढ़ाने का अप्रोच देना पड़ेगा, उसके लिए सर्विसिंग करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप 1 कमांड टास्क नहीं है, 30+ कमांड टास्क इंडिविजुअली करोगे. कैसे करवाता वो मेरा काम है. आई वॉज अ GTO, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं था, तो मेरे ऊपर छोड़ दो, DIPR का चिट्ठी है. सो वंस यू डू दैट, आपका दिमाग इतना खुल जाएगा कि विजुअली देखते ही आपको सोल्यूशन आ जाएगा. दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. सो द टेक्निक दैट आई यूज इज स्ट्रक्चर एनालिसिस अलॉन्ग विद विजुअलाइजेशन. व्हाट इज दैट? वो SML में और इधर को कॉम्बिनेशन है. MIS ऑफ सेल्फ जब करोगे आपको पता चलेगा. और इतना पावरफुल कि वीडियो में फोटो देखोगे और बोलोगे सर सोल्यूशन आ गया. ऑल यू नीड टू नाउ डेवलप इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट दिस सोल्यूशन, सो दैट जिनके पास फट्टा बल्ली रस्सा है उनको आप कम्युनिकेट करो और वो आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करो. जिस तरह से शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं, बनाने वाले मजदूर, लेकिन नाम कसका जानते हैं, शाहजहां का. सो that ability to create idea simply by observing, और इतना पावरफुल ऑब्जर्वेशन कि GTO ब्रीफ करे और आपको सोल्यूशन आ जाए, इतना पावरफुल. विश्वास ना हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं कुछ लड़कियों के नंबर दूंगा. रेकमेंडेड भी नहीं है, बट GTO में द फिनोमिनल परफॉर्मेंस दे हैव फेल्ट देमसेल्फ, खुद को लगेगा. वो तो क्लास में दूसरे दिन लग जाता है. इफ़ यू डू 30 कमांड टास्क, वो भी विजुअलाइजेशन, आपको पता है आपका दिमाग कितना तेज हो जाएगा. सो और दूसरा जो कार वॉशिंग भी करा सकते हो. कार वॉशिंग मतलब कन्वेंशनल कोचिंग में चला जाओ. कोई लड़का अगर कन्वेंशनल कोचिंग में चला जाए तो इसको क्या करेंगे, इसको जाके भेड़ चाल पे चढ़ा देंगे. आपको बता देंगे भैया ये सोल्यूशन होता है, ऐसा है. ये सोल्यूशन अंदर डाला जा रहा है. फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड है, लोड दूसरों से उठवा देना, ये कर देना, रस्सी बांधने के हैंगमैन पता नहीं कौन सा न्यूज़ बना दिया. नो दैट्स ओके, दैट बड़ा मज़ा आता है ना. कलेक्टिव ट्रेनिंग जहाँ पे 2 PGT 2 HGT कर जाते हो, एक सुपरफिशियल कॉन्फिडेंस आ जाता है. आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पकड़ में आ रहा है, आपको सॉल्यूशन अंदर घुस रहे भेड़ू की तरह. जैसे ये लड़की है 98, ये करेगी और बाकी पूरे भेड़ू की तरह देख रहे हैं, तो सबको एक कॉन्फिडेंस आया था, अरे ये मुझसे हो जाएगा. अरे दम है तो पानी में उतर के दिखाओ ना. सो भेड़ चाल पे नहीं चलेगा. अब ये जितने लड़के लड़कियां देख रहे हैं भेड़ू की तरह, ये 98 करेगी
और 98 को करके सबके अंदर सॉल्यूशन चला जाएगा, जबकि सॉल्यूशन बाहर से अंदर नहीं आना है, अंदर से बाहर आना है। जैसे इस लड़के का अंदर से बाहर नहीं आया, सो भेड़ चाल वाला तरीके से नहीं चलेगा। सो आपके पास लाइक यस्टरडेज वीडियो, यू हैव टू गो फॉर दिस जर्नी फ्रॉम कन्याकुमारी टू ये, और आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 कार का सर्विसिंग एंड वॉशिंग, कार का सर्विसिंग एंड वॉशिंग, जिसमें आपको जो मैंने अभी बताया, अगर जीटीओ की बात है स्पेसिफिकली तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, एसएमएल सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप में जो पूरा अंदर का सर्विसिंग, और सेकंड ऑप्शन इज कार का वॉशिंग, ऊपर ऊपर से लिपा पोती कर लो, टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो, फट्टा उठा लो, रस्सियाँ बांधना सीख लो, सुसाइडल टेंडेंसी छुपा दो, दैट्स वॉशिंग। कल का वीडियो देखा था। तो आप डिसाइड करो आपकी कार का परफॉर्मेंस सिर्फ वॉशिंग करने से हो जाएगा या सर्विसिंग करने से बढ़ेगा। दैट्स अ कॉल दैट यू टेक। एंड अगर आपको ऑप्शन 1 चाहिए जिसमें कि सर्विसिंग एंड वॉशिंग है, तो एसएमएल एंड एसएसबी का क्लासेस हर मंडे को शुरू होता है, 2 वीक्स प्लस 2 वीक्स, टोटल 4 वीक्स का है। एंड फ्रेश बैच स्टार्ट्स एवरी मंडे। द नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग ऑन द कमिंग मंडे, दैट्स 21st of February, एंड उसके बाद 28th of February, एंड सब्सिक्वेंटली मार्च वगैरह के हैं वो डिटेल्स है। एब्सोल्युटली आपके दिमाग को खोल दिया जाएगा जैसे कार की सर्विसिंग होती है, आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। 500% गारंटी क्लैरिटी का, वो तो वीडियो से ही पता चल रहा होगा। एंड अगर आपको मार्च में चाहिए तो 7, 14, 21, 28 अप्रैल में भी ये जो टिक्स है, इसमें किसी भी डेट में आप जो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इमीडिएट वाला इज ऑन द 21st of February। एब्सोल्यूट सर्विसिंग, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 में कहाँ पे गड़बड़ है, what to change, why to change, what are the consequences if you don't change, and second, what is the method to change, vidhi, and third, and which I cannot give, is the इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ कन्याकुमारी से ले जाना बोलने से नहीं चलेगा, कार को सर्विसिंग करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा, पेट्रोल इंजन ठीक करना पड़ेगा, ड्राइविंग ठीक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ठीक रखना पड़ेगा, और गाड़ी चलाना पड़ेगा। बिना गाड़ी को रिपेयर किए, बिना गाड़ी को सर्विस किए, गाड़ी चलाए बिना आप ले नहीं पहुंचोगे। नाइदर यू विल रीच योर 3.6 इज द क्लियरेंस रेट। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। टू रजिस्टर 9090099035 इज द नंबर। दोबारा बोल रहा हूँ, 9090099035। सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में थोड़ा सा भी ईमानदारी है, सोचना, प्लीज़ सोचो। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास आओ, तुम जाओ जहाँ वॉशिंग करवाना करवा लो, बट सोचो व्हाट विल हेल्प यू। कार के 4 पहिए हैं, इंजन है, इन्हें ठीक करो। उस लड़के का जो वीडियो देखा, इंजन ही ख़राब था। तो मुझे बताना कि क्या समझ में आया। एसएसबी वो नहीं है जो हम आपको कोचिंग वाले दिखा रहे हैं। एसएसबी में 3.6% सिलेक्शन रेट है, तो कुछ तो सच्चाई है जो आपको नहीं पता। अगर वो जानने की ताकत है और हिम्मत है, मोस्ट वेलकम। मुझे बताना इस वीडियो से क्या समझ में आया। सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना। आलतू फालतू वीडियो को देख लेते हो तो इस पर भी ज़रा देख के कमेंट वेमेंट डाल देना, ताकि मुझे भी पता चले क्या समझ में आ रहा, कुछ क्लैरिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये ज़रूर बताना। बिकॉज मेरे वीडियोज़ में सोचने पर मजबूर कर दूंगा। आप रेकमेंड होना चाहता, लेकिन अगर आपका दिमाग ही नहीं चलेगा तो कहाँ से रेकमेंड होगा। तो मुझे बताना क्या समझ में आ रहा है। एंड आई होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। आपका चॉइस है, आपका समय है, आपका एफर्ट्स है, आपका पैसा है। यू आर द बॉस, यू डिसाइड वेयर टू गो। बट आई एम टेलिंग यू, अनलेस you fix your issues, you cannot hide core qualities and become officer. No, you cannot. And even if you become, you will be a burden on the nation. So soch samajh kar decision lena. And I hope this video is helping you. Thank you, and may God bless you. Thank you very much.